इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p। इट मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर हमको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इसका वीडियो हम दोबारा एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तत्काल अभी हम लोग सल्फर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। चूँकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है थर्ड और थर्ड ऑर्बिट में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। और चूंकि ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, each and every element have tendency to acquire 8 electrons in their outermost orbit, which is called octet group। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और अगर नहीं पढ़े होंगे तो अलग वीडियो में मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन तत्काल अभी आप समझिए क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की इच्छा होती है, टेंडेंसी होती है, इसीलिए इसकी वैलेंसी होती है 2। Since it has tendency to gain 2 electrons, the valency is 2. Now the sulfur have atomic mass 32 and the oxidation state of sulfur is variable. It has not a fixed oxidation state. The oxidation state of sulfur varies in different compounds. It means that the sulfur may have oxidation state -2, 0, +4 and +6। अब हो सकता है आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, why ऑक्सीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए, जैसा कि अभी हम लोग देखें कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है 3s2, 3p4। क्या इसके बगल में 3d होता है? बिल्कुल होता है। थर्ड ऑर्बिट में d ऑर्बिटल होती है। ये बात अलग है कि अभी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन थर्ड ऑर्बिट थर्ड जो इसमें d ऑर्बिटल है, थर्ड ऑर्बिट में d ऑर्बिटल होते हैं। इट मींस 3s2, 3p4 के बगल में 3d भी होता है, यानी सल्फर के ग्राउंड स्टेट में जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p4 1 2 3 and 4 3p4, but the d orbital is empty. Since there is 2 unpaired electron, and it has tendency to gain 2 electron, its oxidation number, its oxidation state is -2, because it has tendency to gain 2 electrons. But now if the sulfur comes in excited state, S में है 2 इलेक्ट्रॉन और P में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। There are 2 electrons in the s orbital and 3 electrons in the p orbital in ground state, but when the sulfur comes in excited state, its paired electron jumps to the empty d orbital. It means this electron jumps to next empty d orbital, and now there are 4 unpaired electrons. Now in this condition, sulfur has tendency to share 4 electrons, and therefore the oxidation state of sulfur is +4, not
not minus. Its oxidation state is +4. Why? Because when the sulfur has tendency to gain electron, oxidation state will be negative. But the sulfur have tendency to share 4 electrons in excited state because it has 4 unpaired electron, and due to it has 4 unpaired electron, it has tendency to share these 4 unpaired electron, and so that the oxidation state is +4. Now there is one more possibility. If this paired electron jumps to the empty d orbital, now there is 6 unpaired electron, and now the sulfur have tendency to share these 6 unpaired electrons, and therefore the oxidation number of sulfur is +6. But you are aware that when an element found in free state, its oxidation number is 0. It means that sulfur may have oxidation number state 0 in its free state. It means that sulfur have variable oxidation state. It have -2, +4, +6 and 0 oxidation state. उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर जो सल्फर है, सल्फर के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है। और वेरिएबल क्यों होता है? क्योंकि सल्फर में जो d ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होता है। सिंस देयर इज एम्प्टी d ऑर्बिटल, चूंकि सल्फर का d ऑर्बिटल खाली होता है, ग्राउंड स्टेट में सल्फर में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये 2 ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। यही कारण है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सिर्फ -2 होता है। लेकिन वही सल्फर जब हमारा एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे की ओर, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आगे की ओर जंप करके अनपेयर हो जाते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाते हैं, अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आएगा इस तरह से 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी सल्फर एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है। और यही कारण है कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है, -2 भी होता है, +4, +6, 0, बहुत सारे होते हैं। ये सभी होते हैं सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। इट मींस दैट यदि आपसे कोई ये पूछे व्हाई द सल्फर हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सिंस देयर इज एम्प्टी d ऑर्बिटल इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ सल्फर एंड द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स may be jump to the next higher energy level, that is the empty d orbital, and therefore the sulfur may have variable oxidation state. यही कारण है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। लेकिन अब आपका ये सवाल है कि सर कब होता है, किस कंपाउंड में ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को मिलेंगे? तो आप ये देखिए, अगर सल्फर अकेले हो इन फ्री स्टेट, इफ सल्फर इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, द सल्फर हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर सिर्फ सल्फर और कोई उसके साथ जुड़ा नहीं है, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, सल्फर फ्री स्टेट में है, तो आप ये बात पढ़ चुके हैं, 11th में भी जानते होंगे कि अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी 0। तो अगर सल्फर है, केवल सल्फर है और कुछ भी उसके साथ अटैच नहीं है, वो सल्फर एलिमेंट के रूप में है, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, तो इन द एलिमेंट्री फॉर्म सल्फर में हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इन कंपाउंड स्टेट अगर वो कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, यू मे टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। यहाँ पर आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, सल्फर का हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, तो देन क्या होगा 2 × 1 + x = 0, x = -2। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो क्या होता है? सल्फर का मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर x, ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2। यू आर अवेयर
फॉर दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होता है। तो नाउ x प्लस x और 2 से 2 को मल्टीप्लाई किए -4, तो x इज इक्वल टू +4। नाउ अगर H2SO4 का एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सल्फर का मान लीजिए x और ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 1 जा 2 प्लस x और 4 2 जा 8, -8 इज इक्वल टू 0, x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को मिल रहा है 0, हम लोगों को प्राप्त हो रहा है -2, देन +4, देन +6। अगर SO3 की बात कर लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, देन सल्फर x, ऑक्सीजन -2, तो x - 6 इज इक्वल टू 0, देन x बराबर +6। यानी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सारे एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2, +4, 0 और +6 हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोगों को ये बात याद रखनी है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस द एलिमेंट इज reducing एजेंट, और if oxidation number decreases the element, the compound is oxidizing एजेंट। अब अगर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट H2S, सल्फर, SO2 और H2SO4, अभी हम लोग तुरंत देखे हैं, साइड में बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, S के फॉर्म में होगा 0, SO2 के फॉर्म में होगा +4 और H2SO4 में होगा +6। यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम -2 होता है और मैक्सिमम +6 होता है। इसका ये मतलब है कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड किसी रिएक्शन में भाग लेगा, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर मस्ट बी इंक्रीजेस एंड देयरफॉर H2S is a reducing agent. But when sulfuric acid take part in a chemical reaction, the oxidation number of sulfur must be decreases and therefore H2SO4 is a oxidizing agent. But for sulfur and SO2, their oxidation number means the oxidation number of sulfur of SO2 and sulfur in a chemical reaction either increases or decreases, and therefore sulfur dioxide is both reducing agent and oxidizing agent. अगर आपसे कोई पूछे why hydrogen sulfide is a reducing agent, आप क्या बताएंगे? आप ये कहेंगे कि since the oxidation number of sulfur in hydrogen sulfide is minimum, that is -2, and it may only increase in a chemical reaction and therefore hydrogen sulfide is a reducing agent. In other hand, the oxidation number of sulfur in sulfuric acid is +6 maximum and it may only decrease in a chemical reaction and thus sulfuric acid is an oxidizing agent. But in case of sulfur dioxide, the oxidation number of sulfur is +4. It means that when the sulfur dioxide take part in a chemical reaction, the oxidation number of sulfur either increases or decreases, and hence sulfur dioxide may behave like both reducing agent as well as oxidizing agent. उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। और भी कई टॉपिक्स हैं
ग्रुप 16 में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे बनाते हैं, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कैसे होते हैं, कैसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड और भी बहुत सारे रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये मैं आपको सेपरेट दोनों का वीडियो अलग अलग बना के प्रोवाइड कराऊंगा। एक वीडियो में मैं आपको सल्फर डाइऑक्साइड के सारे प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, और दूसरे में मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड के सारे प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। लेकिन वो क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है और कहाँ होता है, तो जानने के लिए बढ़ें अगला क्लास। तब तक के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा और समाप्त आज तक इंतजार करिए अगले वीडियो तक। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9473162345। ये मेरे अपने विद्यार्थियों या वैसे स्टूडेंट्स जो बाहर के हैं और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये सभी के लिए है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई बात अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो के लिंक में आप कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। हमसे जहाँ तक होगा मैं आप लोगों की मदद करूँगा, आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे। और जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन क्लास तो कर ही रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं और ऑफलाइन में हमसे पढ़ सकते हैं तो उनको वेलकम है, ज़रूर आइए और पढ़िए। सावधान।